Hello everyone, how are you all are? I hope you all are good. I hope you all are fit and fine. In this video, we will discuss about the chapter. The name of the chapter is time. So here we will discuss all about the time. So in this chapter, we will discuss lot of things like what is morning, what is noon, what is afternoon, evening. We discuss about how we see the time and how clock help us to see and to know about the time. Also we will discuss about the week, months and year. In the next video that was the second part, and after that we will discuss about the calendar, right? So firstly we will discuss about 2 or 3 things. So let's start. So this is Honey and you all are welcome to my channel. So how we know about the time? The position of sun. Are you listening? Are you getting me? The position of sun in the sky tells us what the time of the day is. Means we came to know about the timing by the position of the sun. हम जो टाइमिंग की पोजीशन टाइमिंग है वो हम जानते हैं सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग. Okay, so firstly we will discuss about the morning. In the morning the sun rises in the east. As you all know that the sun rises in the east. Let me explain you. This is east, this is west, this is north and this is south. These are 4 directions and the sun rises in the east and set in the west. This is the universal truth, and on the daily basis the sun rises in the east and sunset in the west. So in the morning the sun rises in the east. So firstly we know about the mornings. Firstly, the first time which we face, that is morning. So the sun, as you here can see the picture of the morning. In the morning the sun rises in the east. As the sun rises high in the sky, अब जब मॉर्निंग में जो सन होता है वो राइज होता है तो उस टाइम पे वो थोड़ा स्मॉल होता है और उसकी जो हीट होती है वो दैट इज लेस. बट so this is the timing of morning. Okay, and in the morning we wish others good morning या better morning. ठीक है, but as time passed the sun rises high in the sky. मतलब वो क्या करता है, सन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी हाई पे चली जाती है स्काई में. तो at that time we call it as a noon. So we call it a good noon or a better noon. So हमारा जो 12 o'clock का टाइम होता है वो उस समय पे सन जो है वो सबसे हाई होता है. एज द सन हाई राइजेस हाई इन द स्काई इट इज नून, राइट. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्टली जब आपका स्टार्ट होता है डे तो वो मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, एंड मॉर्निंग के बाद जब सन की पोजीशन चेंज होती है, सन जो है वो राइज मतलब थोड़ा सा पोजीशन में हाई हो जाता है स्काई में, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं मिड डे, MID, मिड डे या फिर नून. ओके, तो जो नून होता है उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज सन की जो पोजीशन है वो स्काई में हाई हो जाती है और वो अपने फुल ब्लूम पर होता है. आफ्टर द 12 o'clock यानी कि 12 बजने के बाद द सन मतलब 12 बजने के बाद धीरे धीरे इवनिंग टाइम आने लगता है और उसके लिए व्हेन द सन मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट, धीरे धीरे वो ऊपर की साइड से वेस्ट की तरफ ट्रांसफर होने लगता है. सो व्हेन द सन मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट स्लोली इट इज आफ्टरनून टाइम. सो उस समय पे वो वेस्ट में नहीं गया होता है, मतलब सेट नहीं हुआ है, बट उसकी मूविंग स्टार्ट हो चुकी होती है. So we come back from the school in the afternoon. Generally, you come back to the school, come back from the school at your home. At that time, that's 2 o'clock around. So that time is called afternoon time, and you wish others the time afternoon. Good afternoon. You always say good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Or to each other you wish as good afternoon. Next is the evening time. So here I want to discuss about the day evening. The sun sets in the west in the evening. Okay, so we go out and play in the park because उस टाइम तक जो सन की जो हीट होती है वो बहुत कम हो चुकी होती है. वो ऑलमोस्ट
सेट होने के लिए होता है या हो चुका होता है. सो वी ऑल्सो गो टू द पार्क एंड वी कैन प्ले. वी गो आउट फॉर द मार्केटिंग एंड फॉर अदर वर्क्स एंड वी डू आवर होमवर्क इन द इवनिंग. सो here are 4 times I to tell you: morning, noon, afternoon and the evening. Okay, अब noon evening के बाद हमारी बात आती है night की. So we all know that the moon and the stars in the sky, when we see the moon and the stars in the sky, that means night arrived. So the sun is no longer visible and it becomes dark all around. It is time to go to the bed. Okay, so the sun is no longer visible and it becomes dark all around. और हम डिफरेंस कैसे करेंगे? पूरा एरिया में डार्क हो चुका होता है एंड सन डिसअपियर्ड हो चुका होता है, मून अपीयर हो चुका होता है, स्टार अपीयर हो चुके होते हैं. सो इट इज़ द टाइम टू गो टू द बेड बिकॉज वी स्लीप इन द नाइट जनरली. ओके, सो हियर आर टाइम्स एक्सप्लेन्ड यू. नेक्स्ट इज टेलिंग द टाइम. So we express the time in hours, minutes and second. So we use clocks and watches to tell the time. So मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, यहाँ पर 3 hands होते हैं. There are 3 hands. The face of the clock has 3 hands. So there are also 12 numbers. यहाँ पे 3 hands हैं, आप देख पा रहे होंगे 1, 2 and 3. Okay. Wait, let me change the color. Yes, because black color is visible on the pink. हो सकता है रेड आपको नहीं दिख रहा हो. तो ये देखिए, एक हैंड इसका ये है, एक हैंड ये है और एक हैंड ये है. सो 3 hands आर हियर. ऑल्सो देयर आर 12 numbers. 12 numbers आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो अगर हम बात करें 1 से लेके 12 तक की, यानी कि अगर 1 से लेके 12 तक की बात की जाए, सो देयर आर 24 आवर्स. ठीक है, वहां पर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं एक दिन में. सो अ डे हैज 24 आवर्स. अ फेस ऑफ अ क्लॉक हैज 3 hands. देयर आर 12 numbers 1 to 12. ऑन अ क्लॉक अ डे हैज 24 आवर्स. ठीक है, सो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सबसे छोटे वाले हैंड्स की. This one. So this is hour end. ये आवर वाला हैंड होता है. अगर कभी भी ये वाला हैंड 10 से 11 पे जाता है, दैट मीन्स 1 आवर कंप्लीट हो चुका है. 11 से 12 पे जाता है, दैट मीन्स 1 आवर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, सो द हैंड एक्सप्लेन अबाउट एन आवर. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बिग हैंड. The big hand shows the minutes. Okay, so अगर 1 से लेके 2 पर जा रही है ये, तो इसका मतलब ये है कि 5 minutes कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, सो लॉन्ग, ये तो हो गया आपके मिनट्स. एंड द लॉन्ग एंड द थिन हैंड शोज सेकेंड. अब इसके बाद हमारा लास्ट वाला बचता है, ये सेकेंड को शो करता है. ये सेकेंड्स को शो करेगा. दिस मिनट्स एंड दिस वन विल शो आवर्स. ठीक है, right? So as we go by the hands on the clock, move from one number to another number. As there are 24 hours in a day, the small hand goes around the clock 2 times in one day. Okay, so there are 60 minutes in each hour. एक hour में, in a 1 hour 60 minutes are there. 60 minutes. Okay, and we write AM for the time from midnight to noon. Means आधी रात से लेके और नून के टाइम तक. वी कॉल इट बिफोर, मतलब 12 o'clock से पहले तक हम इसको बोलते हैं AM. ठीक है, राइट. मिडनाइट से लेके फ्रॉम द मिडनाइट टू नून वी कॉल इट AM. वी कॉल इट AM मीन्स 11 AM, 12 AM, ओके, 9 AM, 8 AM, 7 AM, 6 AM, 5 AM. ठीक है, एंड when we use PM for time from noon to midnight, यानी कि midnight to noon AM and noon to midnight, यानी कि पहले midnight से लेकर noon तक आप जब टाइमिंग देखते हैं तो वो AM की होती है, और जब noon से लेकर midnight तक देखते हैं that is PM. ओके, यानी कि अगर आप यहाँ से देखेंगे
12 o'clock के बाद से आप चेक करेंगे तो दैट इज 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिडनाइट लग चुका है तो मिडनाइट के बाद यानी आधी रात के बाद आप उसे AM काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, और आप मॉर्निंग में जो नून का टाइम होगा उसके बाद आप PM काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जब भी आप टाइम लगाएंगे तो उसमें AM PM आप लिखेंगे, ओके। So we may be getting up at 6 AM and getting ready for school. So we may be doing our homework at 6 PM. तो ये आपका एक ड्यूरेशन हो सकती है टाइमिंग की, राइट। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। मिडनाइट से लेकर नून टाइम तक AM होता है, और नून से लेकर मिडनाइट तक, यानी कि मैं यहां पर एक सर्कल बनाकर आपको दिखा रही हूं, ये आपका मिडनाइट है, ओके। रात के 12 बज चुके हैं। उसके बाद जो रात का 1 बजेगा या 2 बजेंगे या 3 बजेंगे, इनको आप बोलेंगे AM, और ये AM आप बोलेंगे कम से कम 11 बजे तक। 11 से लेके 12 बजे तक भी आप 12 o'clock तक भी आप नून के से बोल सकते हैं, लेकिन 12 o'clock होते ही आप इसे PM में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद 12 o'clock नून से लेके आपके मिडनाइट तक PM ही रहेगा, और मिडनाइट से फिर से AM हो जाएगा, ओके। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। सो व्हाट इज द होमवर्क? आपका होमवर्क क्या है इसमें? आपका होमवर्क है सिंपल। फर्स्टली यू हैव टू मेक अ क्लॉक। आपको एक क्लॉक बनानी है। क्लॉक में आपको 1 से लेके 12 तक आपके पूरे नंबर्स लिखने हैं। आपको हैंड बनाना है, तीनों हैंड आपको बनाने हैं, मिनट का, सेकंड का, आवर का। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द 3 हैंड्स, तीनों हैंड्स बनाने, और प्रॉपर पिक्चर बना के उसको कलर करना है, ओके। नेक्स्ट इज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और इवनिंग के बारे में। सो दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।